السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 55۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ کا مسافر آتون اس وقت ہندوستان میں ہے اور یہ 1857 کی جنگ آزادی کا زمانہ ہے۔ دوستو، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ یہ سن 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز تھا۔ اس جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں 19ویں صدی کے ہندوستان میں پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پیچھے میرٹھ شہر میں چل کر کوئی گھوڑا لیتا ہوں، اس پر بیٹھ کر ہندوستان کے دارالحکومت دلی کا رخ کروں گا۔ شہر قریبی تھا، وہاں دیکھا کہ جگہ جگہ آگ لگی ہے۔ ہندی فوج کے سپاہی گوروں کے بنگلوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ شہر کے غنڈے بدمعاش اور چورو چکے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باغوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور مکانوں اور دکانوں کو توڑ کر لوٹ رہے ہیں۔ ایک گرجا گھر کے باہر انگریزوں کی کٹی پڑی لاشیں پڑی تھی۔ آخر مجھے ایک گھوڑا مل گیا۔ میں اس پر سوار ہو کر شہر سے باہر جاتی سڑک پر چل پڑا۔ آگے جا کر سینکڑوں باغی ہندوستانی سپاہیوں کو دیکھا، پیدل ہی دلی کی طرف چلے جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان کی زبانی میرٹھ چھونی میں غدر کا وہ سارا حال احوال معلوم ہوا جسے آپ کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ چربی والے کارتوسوں کا تو ایک بہانہ تھا، اصل بات یہ تھی کہ ہندوستان میں عیسائی پادریوں نے لوگوں کو زبردستی عیسائی بنانے کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ مسلمان ان کی سرگرمیوں سے سخت نالاں تھے۔ انگریز کا سیاسی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ مسلمان ایک جنگجو قوم سمجھتے ہوئے انگریزوں نے ان پر اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے بند کر رکھے تھے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ پنجاب میں سکھ مسلمانوں پر مظالم توڑ رہے تھے۔ زمینوں پر مقامی ذمہ داروں کا قبضہ تھا۔ کسانوں پر نت نئے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ کوئی اس کے خلاف آواز بلند کرتا تو اسے کوڑے مارے جاتے۔ یہ باتیں مجھے ان باغیوں نے بتائیں جو باغی سپاہیوں کے ساتھ دلی کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ یہ قافلہ صبح صبح دلی پہنچ گیا۔ سامنے جمنا کا پل تھا، اس کے پیچھے صرف شاہی قلعہ نظر آ رہا تھا جہاں مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ 80 سالہ بہادر شاہ ظفر مقیم تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ہجوم نے محسوس چنگی کے انگریز ملازموں کو قتل کر ڈالا، ان کے بنگلوں کو آگ لگا دی۔ باغی پل پار کر کے دریا کے دوسرے کنارے بادشاہ کے محل کی کھڑکی کی جانب بڑھے۔ میں ان باغیوں میں شامل تھا۔ ایک شاہی اہلکار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور حالات سے آگاہی حاصل کر کے واپس محل کی طرف روانہ ہوا۔ باغی سپاہیوں کا ہجوم کشتیوں کے پل کی دوسری طرف پہنچا تو شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ راج گھاٹ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ بادشاہ شاہی جھروکے میں بیٹھا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ لاغر جسم، جھکی ہوئی کمر، سفید لمبی داڑھی، گلے میں موتیوں کے ہار، آنکھوں میں ہلکے، یہ تھا سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ جس کی لو پہلے ہی مدھم ہو چکی تھی۔ باغی سپاہیوں نے بادشاہ کے حضور اپنی شکایت پیش کی اور کہا کہ ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ ہندوستان میں پھر سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو اور انگریزوں کو ملک سے نکال باہر کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کہاں کا بادشاہ ہوں، میں تو حقیر فقیر ہوں، اپنی اولاد کے لیے اپنے اجداد کے محل میں پڑا ہوں، میرے پاس نہ مال ہے نہ خزانہ، میں تم لوگوں کو کہاں رکھ سکتا ہوں؟ ہاں، بیچ میں پڑھ کر انگریزوں سے تمہاری صلح صفائی کرا سکتا ہوں۔ باغی سپاہی اپنی کشتیاں جلا کر وہاں آئے تھے۔ بادشاہ کو بے بس و مجبور پایا تھا، انہیں اپنے بال بچوں کا مستقبل تاریک ہوتا دکھائی دینے لگا۔ کمشنر مسٹر فریزر باغیوں سے بات کرنے سامنے آیا تو ایک سپاہی نے ان پر گولی چلا دی۔ گولی غدار حکیم احسن اللہ خان کے برابر سے گزرتی تسبیح خانے کے ستون سے جا لگی۔ مسٹر فریزر اور مسٹر ڈگلس بگی پر باہر نکلے تو سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ ڈگلس نے ایک سوار کو پستول سے قتل کیا اور بگی کے گھوڑوں کو باغ قلعے کی ڈیوڑی کی طرف موڑ دی۔ چھتے سے ہوتے ہوئے زینا چڑھ رہے تھے کہ باغیوں نے وہیں دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اب کچھ باغی قلعے میں گھس آئے۔ باغیوں نے شہر کا رخ کیا۔ شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ بغاوت ہو گئی ہے اور بادشاہ نے اسلام کا پرچم بلند کر دیا ہے۔ لوگ باغی سپاہیوں کے ساتھ مل گئے اور شہر میں موجود انگریزوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ باغی سپاہی انگریزوں کے بنگلوں میں جاتے، انگریزوں کو ہلاک کرتے، آگے بڑھتے، پیچھے شہر کے غنڈے بنگلوں کی لوٹ مار شروع کر دیتے۔ دلی چھاؤنی میں 3 ہندوستانی پیادہ ریجمنٹس، ایک توپ خانہ تھا۔ یہ ریجمنٹیں بھی باغیوں سے مل گئی۔ انگریزوں نے دلی کے بارود خانے کو آگ لگا دی۔ اس ہولناک دھماکے سے دلی کے کئی مکان گر گئے۔ انگریزوں نے دلی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت سے راستے میں مارے گئے اور بہت کم امبالہ کرنال پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ لال قلعے پر باغیوں کا قبضہ ہو گیا۔ شہر میں کوئی انگریز باقی نہ رہا۔ بہادر شاہ ظفر کو اسلامی حکومت کی علامت کے طور پر بادشاہ بنا دیا گیا، مگر وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے خاندان کے افراد نے جب دیکھا کہ تخت و تاج ان کے خاندان میں آ گیا ہے تو محلاتی سازشوں کا بازار گرم ہو گیا۔ جنگ آزادی کے جیالے لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، ہر شہر میں خوریز مارکے ہو رہے تھے اور شاہی محل میں ولی عہدی کے لیے سازشیں شروع ہو رہی تھی۔ غدار جنم لے رہے تھے جو انگریزوں کو پل پل کی خبریں پہنچانے لگے۔ انگریز جوابی حملے اور دلی کے محاصرے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ سکھوں کی 3 بڑی ریاستیں جنیدہ، نابا اور پٹیالہ انگریزوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ نیپال کے گورکھے انگریزوں کی مدد کو آ رہے تھے۔ شاہی محل میں غداریاں اور سازشیں عروج پر تھیں۔
मैंने शाही मस्जिद के एक हुजरे में अपना ठिकाना बना रखा था। बादशाह ने शहर का नज़्म व नस्क संभाला तो अमन व अमान को बहाल किया। जनरल बख्त खान को गवर्नर जनरल नामजद किया। बाजार खुल गए, लोगों का एतमाद बहाल हुआ, कारोबार शुरू हो गया। लेकिन सरमाए की कमी, गद्दारों की साजिशों और सरदारों, अमीरों, शहजादों की बाहमी रकाबत ने बहादुर शाह जफर की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ अंग्रेज खामोशी से दिल्ली पर चढ़ाई की कोशिश में लगे थे। मुजाहिदों ने भी मोर्चे बना रखे थे। अंग्रेज फौज के साथ गोरखा और सिख फौज भी थी। दुश्मन ने दिल्ली पर हमला कर दिया। महल के गद्दारों ने अंग्रेजों से दरपर्दा राब्ता कायम कर रखा था। दोनों तरफ से तोपों ने आग उगलनी शुरू कर दी। मुजाहिदीन का सबसे बड़ा मोर्चा कश्मीरी दरवाजे पर था। अंग्रेजों के पास असला की कमी ना थी। एक गोले ने कश्मीरी दरवाजे को उड़ा दिया और गोरा फौज शहर में दाखिल हो गई। गली गली, कूचे कूचे में जंग होने लगी। शहर के बड़े हिस्से पर अंग्रेजी फौज का कब्जा हो गया। बादशाह ने बख्त खान की मर्जी के उलट लाल किला छोड़ दे हुमायूं के मकबरे में चला गया। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बादशाह ने खुद को मेजर हडसन के हवाले कर दिया। शहजादों को कत्ल करके इनकी नाशें खूनी दरवाजे पर लटका दी गई। अंग्रेजों ने अपनी फौज को इजाज़त दे दी कि वो तीन दिन तक शहर को लूट सकते हैं। मैं अभी तक जामे मस्जिद के हुजरे में रह रहा था। तारीख के तवील सफ़र के दौरान शहरों पर इस किस्म की तबाही नाजिल होते कई बार देख चुका था। इसलिए मैं तारीखी अमल में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था। शहर में लूटमार और कत्ल गारतगरी का सिलसिला जारी था। लोग अपनी जानें बचाकर शहर से भाग रहे थे। कई आलिशान इमारतें, मसलन मिलाती बेगम का कूचा, खाने दौरान की हवेली, अंगूरी बाग और जरनैल की बीबी की हवेली मिस्मार कर दी गई। जामे मस्जिद से राम घाट की तमाम इमारतों को ज़मींबोस कर दिया गया। हज़ारों को फांसी मिली और हज़ारों को तोप ने दम कर दिया। एकला जामे मस्जिद में भी सिख फौजी घुस आए। यहाँ कई मुसलमान पना लिए हुए थे। इन सबको पकड़ लिया गया। मैं भी इन गिरफ्तार शुदगान में था। सारा शहर वबाल की जद में था। मैं किस किस की जान बचाता। किले के मैदान में तोपें लगी थी। अंग्रेज जरनेल कुर्सी पर तलवार लिए बैठा था। मुजाहिदीन आज़ादी को तोपों से बांधकर उड़ाया जा रहा था। मुझे भी एक तोप के मुंह पर रस्सियों से जकड़ दिया गया। अंग्रेज ने तलवार का इशारा किया। तोप के बारूद को आग लगा दी गई। एक धमाका हुआ। मुझे जबरदस्त झटका लगा और मेरा जिस्म पुरजे पुरजे होने के बजाय सबकी हैरतज़दा आंखों के सामने फजा में उड़ते हुए मैदान की दूसरी जानिब दरिया के किनारे घने दरख्तों में जा गिरा। मैं दरख्तों की शाखों में से खिसकता नीचे जमीन पर जा लगा। अंग्रेज जरनेल और वहाँ खड़े फौजी मेरे जिस्म को सही सालम फजा में उड़ते देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, लेकिन मैं इनकी जद से निकल चुका था। यह मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी लड़ाई झगड़ा मोल लिए बगैर चुपके से वहाँ से निकल जाऊँ। दरिया चढ़ा हुआ था। शाम का झटपटा होने लगा तो मैंने सोचा दरिया पार करके दूसरी तरफ निकल जाना चाहिए। मैंने कश्ती में सवार होने के लिए कदम उठाया ही था कि मुझे एक औरत की भारी मगर खुश्क सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी बेटी ज़मानी बेगम को बचाओ। मैंने पलटकर अपने पीछे देखा। वहाँ कोई औरत ना थी। किसी तरफ से कोई भी औरत नजर न आई। फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? बेटा, मैं इस कश्ती में बैठी हूँ। मैं ज़मानी बेगम की माँ हूँ। पिछले बरस मैं दरिया में नहाते हुए डूब गई थी। तब से दरिया पर मेरी रूह भटक रही है। शहर में गुदर मचा हुआ है। मेरी इकलौती बेटी ज़मानी को सिख फौजियों ने घर से अगवा कर लिया है। चांदनी चौक वाली लाल हवेली में जाओ। तुम मेरी बच्ची की जान और इज्जत बचा सकते हो। मैं इसी जगह तुम्हारी राह देखूंगी। एक दुखी माँ की रूह की फरियाद सुनो और मेरी बच्ची की मदद करो। मैं कैसे इसकी मदद नहीं कर सकता था। यह हुक्म गोया मुझ पर मिन जानिबे अल्लाह आया था। मैंने ज़मानी बेगम की वालिदा की रूह से कहा कि मैं इस बच्ची की जान बचाने की कोशिश करूंगा, वो मेरा इंतज़ार करे। ये कहकर मैं कश्मीरी दरवाजे वाली दीवार के शिकाफ में से शहर में दाखिल हो गया। शहर एक वीरान करीने का नक्शा पेश कर रहा था। भंगी मुंह पर कपड़ा लपेटे लंबे लंबे बांसों से लाशें उठा रहे थे। घरों पर तारीकी छा रही थी। गोरखे, सिख और गोरे फौजी बंदूकें उठाए दंदनाते फिर रहे थे। चांदनी चौक का सारा इलाका मेरा देखा था। मैं फतेहपुरी के रास्ते से निकलकर चांदनी चौक की तरफ रवाना हो गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते रात का अंधेरा शहर पर उतर आया। लाल हवेली चांदनी चौक के बाजार के मगरबी कोने पर आम के एक वसी बाग में वाक़ थी। यहाँ कब्रिस्तान जैसी खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। हवेली में जैसे आसेब का साया था। किसी दरीचे, किसी खिड़की से रोशनी की एक किरण भी बाहर नहीं आ रही थी। कहाँ ज़मानी बेगम की वालिदा की रूह को मुगालता तो नहीं हुआ, लेकिन रूहों को बहुत इल्म होता है। मैं हवेली के अकब में आ गया। यहाँ पर दरख्तों में एक छोटा सा वीरान कुटियानुमा मंदिर देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि मुसलमानों की हवेली में यह मंदिर कहाँ से आ गया। किसी औरत की चीखनुमा आवाज़ बुलंद हुई। वो मदद के लिए पुकार रही थी। यह ज़मानी बेगम के सिवा और किसी की आवाज़ नहीं हो सकती थी। मैं हवेली के सदर दरवाजे की तरफ दौड़ा। क्या देखता हूँ कि इसका ताक खुला है। ये सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि यह ताक खुद ब खुद कैसे खुल गया। वह हवेली में घुस गया। औरत की आवाज़ दूसरी मंजिल से आ रही थी। ये अंधेरी घुप जगह थी। सुतूनों वाले दालान के पीछे बंद कोठरी थी। औरत की दबदबी आवाज़ इस कोठरी से आने लगी। मैं बेइख्तियार कोठरी के बंद दरवाजे को धकेलते अंदर घुस गया। सबसे पहले तो ये बात हुई कि मेरे अंदर जाते ही कोठरी का दरवाज़ा धड़ाक की आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो गया। दूसरी बात यह हुई कि पहले जिस औरत की फरियाद की आवाज़ आ रही थी,
اب اس نے कपकपाते हुए मगर हड्डियों को जुमा देने वाले डरावने लहजे में बुलंद आवाज से कहा, कालिए, ओ कालिए, हरिया कहाँ है? ए लो, इसे संभालो। एकदम से मेरी छठी बल्कि सातवीं की सारी हिस्सियात बेदार हो गई। खतरे की घंटी चीख चीख कर मुझे खबरदार करने लगी। यह चक्कर ही कुछ और निकला था, ताहम मुझे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। सोचा अगर मेरे साथ फ्रेब किया गया है तो मुझे फौरन यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। मैं पीछे मुड़कर बंद दरवाजे के पास आ गया। इसे खोलने का हाथ लगाया ही था कि एक शोला सा दरवाजे के पट से निकलकर मेरी तरफ लपका। मैं हाथों को झटकता हुआ पीछे हटा। हैरत की बात ये नहीं थी कि दरवाजे के पटसन में शोला कहाँ से निकल आया, बल्कि ये थी कि इस शोले ने मेरे हाथों में शदीद तपश महसूस की थी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने दोबारा बंद दरवाजे को हाथ से धकेला, फिर वही शोला बुलंद हुआ और मेरा हाथ जलते जलते बचा। इसके साथ ही किसी पूर्विया की आवाज़ आई, अबे ओ हरिया, इस मुसले को बांध रख, दहशती आने वाली है। कोठरी में घूप अंधेरा था। खुदा जाने ये किसकी आवाज़ और कहाँ से आ रही थी। इतना मुझे पता चल गया था कि मुझे किसी नई मुसीबत में फंसा दिया गया है। ये लोग कौन है? दश्तनी कौन है जिसका ये बदरूहें बार बार नाम ले रही हैं? ज़मानी बेगम कहाँ गायब हो गई थी? यकीनन मैं बदरूहों के चक्कर में घिर गया था, जिनको हिंदू लोग बदरू नहीं बल्कि मसान कहते हैं। मैंने अपने बाजू में उंगली में नाखून चुबो दिया। मुझे दर्द महसूस हुआ। ओ खुदा, ये क्या हुआ? मेरी ताकत मुझसे जुदा हो गई थी। मैं एक आम इंसान कमज़ोर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अब कमरे में मुझे घुटन भी महसूस होने लगी थी, जिसका एहसास मुझे इस कोठरी में पहले तो क्या कब्र में हफ्ता हफ्ता भर बंद रहने के भी नबाद नहीं हुआ था। कालिया के मसान ने किसी मरहटे मुसान को पुकारा था। इसका बारीक सा जानवरों जैसा कहका सुनाई दिया। रख दिया भी बांध के इस मुसले को। चल अब दश्तनी को मंदिर से बुलाते हैं। ए ले, वो तो चली आ रही है। मुझे ये आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थीं, जो अगरचे इंसानी आवाज़ें थी, लेकिन इनमें एक खास किस्म का डरावनापन और मिनमिनाहट थी। इंसानी कमजोरियों के पैदा होते ही मुझे खौफ सा महसूस होने लगा। मैं चंद कदम पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। अंधेरे में मुझे पहले कुछ जरूर नजर आ जाता था, लेकिन अब सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिल पर लर्जा तारी कर देने वाली खामोशी छा रही थी। इसी खामोशी की दहशत ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। इसी हरिये मसान की मकरू आवाज उभरी, अबे कालिए, काली धश्तनी आ रही है, भाग रे भाग। चीजों के उलटने पलटने छोटे छोटे मकरू कहकों की आवाजें बुलंद हुई और फिर गहरा सन्नाटा छा गया। ये मोमा मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे खिलाफ ये जाल किसने फैलाया था। यकीनन कश्ती वाली रूह किसी हिंदू औरत का या मसान या बदरू थी, जिसने ज़मानी बेगम की मदद का ढोंग रचाकर मुझे मक्कारी से इस हवेली में अपने साथी मसान के पास पहुंचाकर बंद कर दिया। वो मुझसे क्या चाहती थी? मैं अपनी परेशान सोचों में खोया हुआ था कि मुझे कोठरी में एक नागवार किस्म की बू का एहसास हुआ। मैंने सांस रोक ली, मगर सांस रुकने से मेरा दम घुटने लगा। नागवार बू जैसे मेरे जिस्म में रच गई थी। फिर किसी के कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी और वही कश्ती वाली औरत की रूह की आवाज़ आई, मैं धश्तनी मसान हूँ। मैंने खुश होठों पर जुबान फेरी और कहा, तू वही कश्ती वाली औरत की रूह है? तो ये बता कि तूने मेरे साथ ये फ्रेब क्यों खेला? धश्तनी बोली, तू ये पूछने वाला कौन है? तू मेरे कब्जे में है। हरी और कालिया मेरे दो सेविक मसान तेरे पहरे पर लगाए हैं। मैंने तेरी शक्ति छीन ली है। तू मेरा गुलाम है। तेरी ज़िंदगी मेरे इख्तियार में है। मैंने पूछा, आखिर ये सब किस लिए है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। धश्तनी मुस्कान का मकरू कहका बुलंद हुआ, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं तो तेरा कई सालों से इंतजार कर रही थी। मुझे राक्षस देवता ने बता दिया था कि एक मुसला पुराने ज़माने से सफ़र करता चला आ रहा है। इसको पकड़ लो, वही तुम्हारे काम आएगा। मैंने दोबारा सवाल किया, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मेरा इंतज़ार किस लिए कर रही थी? धश्तनी की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी, मुझे वो मंत्र बता दो जो तुम्हारी माता ने बताया है। मैं तो सर से पैर तक जैसे कांप गया। ये बदरू मसान क्या कह रही है? मेरी वालिदा साहिबा का बताया हुआ इसमें ख़ास इनकी अमानत थी और मैं इस अमानत में कभी ख़यानत नहीं कर सकता था। मैं ये इसमें ख़ास क्यों को दूसरे को बता सकता था, और ख़ास तौर पर एक हिंदू औरत की बदरू यानी मसान को बता दूँ? ये एक नामुमकिन बात थी। मैंने अनजान बनकर पूछा, तुम किस मंत्र की बात कर रही हो? धश्तनी बदरू हंसी। इस हंसी में तंज था। अनजान मत बन, तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। सुनो, मुझे वो इसमें ख़ास बताओ जो तुम्हारी माता ने तुम्हें बताया था और जिसके पढ़ने से पहाड़ रोड़ा बन जाते हैं, दरख्त घास की शक्ल में बदल जाते हैं और इंसान छोटा होकर हकीर कीड़ी की सूरत इख्तियार कर लेता है। मैंने धश्तनी बदरू को साफ साफ बता दिया कि मैं अपनी वालिदा की रूह को दोज़ख में नहीं झोंक सकता। मैं इनसे गद्दारी नहीं करूँगा। ये मंत्र मेरी वालिदा की रूह की अमानत है। मैं इसमें ख़ास कभी नहीं बताऊँगा। एक लम्हे के लिए कोठरी में खामोशी छा गई। ये बड़ी बोझल और तकलीफदेह खामोशी थी, डरावनी खामोशी थी। कपड़ों की सरसराहट की आवाज़ जैसे उसे दूर होती चली गई। नागवार बू बढ़ती चली गई। फिर कोठरी की फ़ज़ा एकदम चीखों की आवाज़ों से भर गई।
یہ انسانوں اور جانوروں کی چیخیں تھی۔ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، آوازیں ہاتھوں سے نکل کر میرے جسم میں گھس رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی والدہ کا تصور کیا اور دل میں اس میں خاص کا ورد کر کے انگلی اپنے جسم کی طرف کر لی، اس خیال سے کہ شاید کسی سوراخ وغیرہ سے باہر نکل جاؤں۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے کہ اس میں خاص کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شاید اس ناگوار بو کا اثر تھا جو میرے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ پھر جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری شے ماری، میں فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ معزز سامعین حضرات، تاریخ مسافر آتون کی یہ داستان پر اسرار ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔